So 9 8 is 72 into, so this is 7 2 is 14, 7 7 is 49, and this is the answer. So this is we get using the formula of NPR. We have used formula NPR, and by the fundamental principle of counting, what we need to do, beta? We have 9 digits, which we have done in exercise 7.1. We have 9 digits, beta, right? And we have to make a 3-digit number. For this place, we have 9 options, right? For second place, we have 8 options, and for this is 7 options, right? So same, if we simplify this, we are left with only this string after the calculations, beta. Only these 3 digits we are available, we are solving in this formula also and in the same. So we have 2 different approaches of solving these kind of problems. This is a formula method to solve this question, and this is fundamental principle. This is known as unitary method of this permutation method. Okay. Okay. Now next question is, how many 4-digit number are there with no digit repeated? First thing, they have not mentioned. Anji beta. Sir, in question paper will they be mentioned that to use any method? Which one? No. This is not will be provided that you have to use the formula or you have to use the fundamental principle. This is, मैंने कहा ना आपको, this is the tool. आपको स्पेशली मेंशन नहीं होगा. We have to apply कि जिस तरीके से मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, we have to give the answer. ठीक है बेटा? Okay, sir. Right. Okay. Now I'm taking question number 2. In question number 2, beta, they are saying how many 4-digit numbers are there with no digit repeated. First thing, they have not given the number of digits. If they are not giving you the digits in whole universe, how many digits we are available with? Batao beta. How many digits we have? 0 to 9. 0 to 9. It means we have 10 digits, right? Like in first question, they specially mentioned we have to use 1 to 9. So in this particular type of question where they have specifying these digits you have to use, then it means it is 9. If they are not giving us these digits you have to use, it means the universe have only these 10 digits. So मैं उस universe में से solve करूँ, ठीक है? Now 4 digits we are required. So again n की value 10 हो गई, r की value 4. So we are using NPR. So it is 10p4. So 10 factorial. 10 minus 4 is 6 factorial. Simplified 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial and divided by 6 factorial. This and this cancel. 987 multiplication is 504. Multiply by 10 is giving 5040. This is the answer. This is the answer by using formula. And by fundamental principle of counting, again same method, we have to use 4 digits at a time. So for first place we have 10. Is this correct or wrong, beta? ये बताओ. Sir, we cannot use 0. Yes. So अभी भी ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये वाली सोच आपको यहाँ पे आएगी. अब इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे FPC यूज किया है. दे आर आस्किंग 4 डिजिट नंबर. चलो मैं इसका एक पहले नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ. देखो मैं 3 डिजिट का लेता हूँ. देखो 3 डिजिट नंबर 1 2 3 123 डिजिट नंबर. ठीक है. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 231, दिस इज अगेन अ 3 डिजिट नंबर. 230, this is 3 digit number. 203, 3 digit number. 023, is this a 3 digit number, beta? No sir, it's a 2 digit number. It's a 2 digit number. So now in this situation what we need to do, beta? पहली बार, for this place we have only 9 options, right? Which digit we have excluded for this place, beta? Which digit? बोलो. मैंने यहाँ पे 9 ऑप्शन रखी है. इस प्लेस पे अगर वी आर मेकिंग अ 4 डिजिट नंबर, मैं कौन सी डिजिट को कंसीडर नहीं कर सकता इस प्लेस पे? 0. ठीक है, 0, बिकॉज 0 to 9 वी हैव 10 डिजिट, उसमें 0 भी है. मैं 0 को यहाँ नहीं कंसीडर कर सकता इफ वी आर मेकिंग 4 डिजिट नंबर, राइट?
So now for this place, how many numbers we have? How many digits we have? बोलो बेटा. 10. 10 नहीं बेटा, 9, because no repetition is given. In this question, they have already given that no digit repetition. Suppose 1 I have written here, तो मेरे पास यहाँ पे 8 बचे अब, और 0 को मैंने पहले से एक्सक्लूड कर दिया है, बट 0 यहाँ पे यूज हो सकता है, तो 8 + 1 9 डिजिट. नाउ फॉर दिस प्लेस, बिकॉज एक डिजिट यहाँ यूज होगी, एक डिजिट यहाँ यूज होगी, नाउ वी हैव 8 एंड देन 7. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज योर कंप्लीट आंसर. 987 का मल्टीप्लीकेशन आपके पास है 5040, सॉरी 504, राइट, इनटू 9 कर दो, तो दिस इज 36 एंड 45. दिस इज, बट अगर मुझे इसमें यूज करना है इस मेथड से, मुझे अब क्या करना है बताइए. What I need to solve here, so Sir, that this is minus. ये एफपीसी कर दिया मैंने, ठीक है ना. एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बहुत क्लियर हो गया, लेकिन जब मैं फॉर्मूले से करूंगा तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर्स, so these are the total 4 डिजिट नंबर्स बेटा, राइट. एंड मुझे उसमें से वो 3 डिजिट नंबर माइनस करने हैं जो इस तरीके से मान के आए, इस तरीके से बन के आए. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब आप देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो वो हो गया मेरे पास 10p4. दिस इज गिविंग ऑल 4 डिजिट नंबर, जिसके अंदर इस जगह पे 0 आ रहा है. अब मुझे ये हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस. अब मैंने क्या किया, 0 नंबर को यूज ही नहीं किया, तो 0 को यूज नहीं किया तो 9. और ऐसे डिजिट को क्या बोलते हैं, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, दिस इज 3 डिजिट नंबर. तो मैंने इस टाइप के जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं वो माइनस कर दिए, ठीक है. तो अब 10p4 - 9p3 करोगे तो आपका आंसर यही आएगा. एक बार उस कैलकुलेशन चेक कर लो कि कहीं हमारी गलती ना हो. ठीक है बेटा, चेक करो एक बार कि इन दोनों से जो आंसर आ रहा है वो यही है, आंसर है या नहीं है, और बुक में भी चेक करो यही आंसर है. इससे सेम आंसर है, क्वेश्चन 4536 ही आ रहा है. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब ये दोनों मेथड आपको, ये देखो कि क्लियर हो गए या नहीं हो गए ये वाले दोनों मेथड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, दोनों फॉर्मूला मेथड भी, और एफपीसी तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर हो गया था. Now taking next question, beta, third question. How many 3-digit even number can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, sorry, 4, 6, 7, and we have to make 3-digit even number. 3-digit even number. Right? So what is the situation better? We have 3 even number. ठीक है, 3 डिजिट की आइडेंटिफिकेशन क्या है 3 डिजिट इवन नंबर की, यूनिट प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो 0, 2, 4, 6 होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब वो इवन नंबर है. So with these available digits we have 3 options to fill this place better, and I think no repetition is allowed. We have 3 options to fill this place. Out of this 6, we are left with 5, and this is 4. So this is 4, 5 is 23, just 60. This is the answer. Right? Anji, अब anyone who can suggest me the formula method, how to solve this using formula? बताइए भाई. Sir, we will do 3 into 5p2. 3 फॉर्मूला, मैं एनपीआर वाले तरीके से कह रहा हूँ बेटा, एनपीआर वाले तरीके से इसको कैसे, देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. 3 into 5p2 directly. 3 into 5p2, यही है बेटा. Yes sir. एक्सप्लेन करो बेटा इसको, मुझे कैसे करोगे, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस?
Sir, the expression is from this. Sir, from this we will have to subtract odd numbers by fixing बेटा one वो तो odd लंबा हो digit. गया। आप जैसे Fixing आपने ये one बताया odd. ना बेटा डायरेक्ट, Yes, sir. इसके लिए क्या लॉजिक लग रहा है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ We will ताकि fix. आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको देखो, एज वी हैव सीन हियर बेटा, this place we can fill only using these three numbers. So for this we have three options, right? Now for these two places we are left with 5 digits and we can use two at a time. So for these two we are taking 5 and this is the calculation. अब इसको solve कर लो. 5 factorial 3 factorial into 3, 5 factorial is 120, 6 2 sorry 3, this is 20 and solve किया तो 60. ठीक है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 7.3 को यूजिंग एफपीसी भी कर सकते हो। आपको लगता है मेरा फॉर्मूला जल्दी सॉल्व कर रहा है तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएगा उस तरीके से सॉल्व करते हैं, या आपके दिमाग में है तो आप मुझे सजेस्ट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 if no digit repeated. Now in the next question number 4 we have 1 2 3 4 5, these 5 digits we have and we have to make 4 digit number that can be formed using this digit with no repetition. तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है बेटा 5p4 और we can write 5 4 3 2, राइट? ये कैलकुलेशन कर लेना आप। साथ में आपको बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। नाउ अगेन वी हैव टू मेक इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर के लिए आपके पास यूनिट प्लेस पे 2 ऑप्शन है, राइट? अगेन सेम 1 2 3 4, फॉर दिस प्लेस वी हैव 2 ऑप्शन। नाउ फॉर रेस्ट 3 places we have 4 options. So for this 4p3, अब इसको मल्टीप्लाई करो तब आप देखोगे कितना आंसर आता है। ठीक है ना? तो इवन नंबर्स के लिए। और अगर आप यूनिटरी मेथड से करते हो तो यूनिटरी यानी कि एफपीसी वाला मेथड 1 2 3 4, this place is filled by 2 with no repetition. Again we have 4 options for this, 3 options for this and 2 options for this. सिंप्लीफाई कर दो बेटा, ठीक है ना? और वही यहाँ आएगा बेटा आपका सोल्यूशन इस तरीके से 4 3 जा 12 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, दिस इज 48 and this is 5 4 जा 20 60 120. So question number 4 we have two answers, 120 and 48 answers, correct? 48. तो इतने इवन नंबर बनेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can not hold more than one position? बेटा वन लास्ट लाइन का क्या मतलब है? assuming that one person cannot hold, क्या बेटा? इसका मतलब बोलता है कि सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो इसी तरीके से जरूरी नहीं कि नो रिपीटेड लिखे, वो नो रिपीटेशन आपको लैंग्वेज से पिक करना है कि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो वी हैव 2 चेयर्स, वन इज अ चेयर पर्सन एंड अनदर इज वाइस चेयर पर्सन, ठीक है? एंड वी हैव 8 कैंडिडेट्स फॉर दीज 2 चेयर्स बेटा। So for this chairperson beta we have 8 options, right? And for this we have 7 because repetition is not allowed. So my answer is 56. And if we are using formula method, out of we have 8 different objects taking 2 at a time, क्योंकि 2 ही chairs है मेरे पास, तो इसका भी आंसर आपका 56 हो जाएगा। Whichever method you can solve, उससे solve करो आप इसे, और कुछ नहीं है। अब देखो 6th 7th क्वेश्चन,
ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, तो इसको एक बार देख लो, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। अब ये कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइंड n if n minus 1 p3, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद ये, हाँ, n minus 1 p3, n minus 1 p3 is equal to, नहीं सॉरी, रेशो np4 is equal to 1:9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। दिस मीन्स व्हाट, it means n minus 1 factorial and this minus this is n minus 4 factorial, minus 1 minus 3 minus 4, right, is equal to, sorry, this is divided by this one, n factorial by n minus 4 factorial is equal to 9. So clearly this and this cancel. So we have n minus 1 factorial divided by n factorial is equal to 1 by 9. Now which one is smaller and which one is larger? So n minus 1 is smaller than this. So in the expansion of n we will get this n minus 1. So we will expand this value, n. So n has 1 factorial divided by n into n minus 1 factorial is equal to 1 by 9. This and this cancelled, cross multiply, you n is equal to 9. ठीक है, चेक करना एक बार, इसका n का 9 ही है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज 9। sir. ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7th का विच पार्ट आई सॉल्व बेटा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बेटा, टेल मी Second part. which one I solve? Second part बेटा, right. Question Sir, number 7, हाँ बेटा बोलो। सर जो के कंफ्यूजन है सर, बोल रहे थे बेटा। हाँ सर, मेरे को से एक कंफ्यूजन है सर। मेरे को सॉल्व करने के बाद ना सर, मेरे को ना दो आंसर आ रहा है, r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3 फर्स्ट पार्ट में। आपकी आवाज दोबारा बोलोगे एक बार बेटा? हाँ सर, मैं बोला था सर, मेरे को एक कंफ्यूजन है सर। मेरे आंसर में ना सिर्फ फर्स्ट पार्ट में मेरा आंसर आ रहा है r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3। तो सर हमें कौन सा लेना होगा फिर? ठीक, मैं फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, पहले रुको। आई सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 5pr is equal to twice of 6pr minus 1, right. Now it is 5 factorial divided by 5r factorial is equal to twice 6 factorial upon 6 minus r, और माइनस से खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल, राइट। तो अब ये हो गया मेरे पास, दिस इज 5 factorial by 5 minus r is equal to twice 6। अगर मैं दोनों साइड न्यूमरेटर पोर्शन को देखता हूँ बेटा, तो this is 5 is more than, so in the expansion of this we'll 5, right. So we'll write 6 into 5 plus 7 minus r factorial. Now clearly this and this cancelled, so we have 1 upon 5 minus r factorial is equal to 2 6 are 12 upon 7 minus r is more than 5 minus r. So in the expansion of 7 minus r, we will get 5 minus r. So 7 minus r into
6 minus r into 5 minus r factorial. This and this cancelled. Cross multiply 7 minus r into 6 minus r equal to 42. 7r minus 6r is minus 13r plus r square equal to 12. Shifting to this side, this become r square minus 13r, and this shifted to this plus 30 equal to 0. Factors we have, factors 30, 10, 3, right? This is 10 and this is 3 equal to 0. This implies r is equal to 3 and 10. We will reject 10. And why? Why? This, remember this thing better. NPR. This is valid only for r should less than or equal to n. ध्यान रखना बेटा, NPR for r should be less than or equal to n. ठीक है, अगर ये आपका इससे ज्यादा हो गया, सपोज 5p6 निकालना है, this is wrong, this we cannot, because according to formula this is 5 factorial and this become minus 1 factorial which is not defined in permutation language. ठीक है बेटा, so r is always less than or equal to n. हाँ, n देखो बेटा मेरे पास 5 है, ठीक है, तो 5 से लेस कौन सा नंबर है? 3. इक्वल टू 5 भी होता तो मेरा आंसर 5 हो जाता है. अब बोलो सर, लेकिन एग्जांपल नंबर 13 में सर दो आंसर दे रखा है, r is equal to 8 and 3. एग्जांपल नंबर 13 में? यस सर. एग्जांपल नंबर 13 में 8 and 3 कंप्लीट लिया, एक लास्ट में एक और आंसर आएगा. हाँ कोई बात नहीं बेटा, इसमें ना लास्ट में आंसर 3 आएगा आपका, तो आपको 8 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके सर. चलिए सेकंड पार्ट भी सॉल्व करूं. कनक आपने पूछा था बेटा शायद, should I solve second also बेटा? No sir. ओके ओके, ट्राई करना. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम बेटा मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? तो आप चेक कर लो बेटा क्या है ये क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज द सिंपल वन. इक्वेशन के अंदर जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं आप उनको यूज करना है, एंड वी हैव टू मेक using all the letters of the word equation. So we have E, Q, U, A, T, I, O, N. No letter is repeating. ठीक है बेटा? And total letters we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8. So it means we have to make 8 letters word. So if we are using formula, so we have 8 different objects taking 8, all 8 at a time. So using this, it means 8 factorial divided by 8 minus 8 factorial, which means 8 factorial divided by 0 factorial, and we know that 0 factorial is 1. So finally we have to solve this. 8 into 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All 8 places we have. These are the 8 places, right? When repetition not. इसमें repetition word नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये they are using each letter exactly once. इस लाइन का ही मतलब है repetition not allowed. ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कैलकुलेशन करके बताना बेटा आपको आंसर. कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना इसको. Now coming to the next one, but before solving next question 9, 10, 11, first I'll discuss some examples also. Mark example number 11. 11 as important question. Example number 11. After that, example number 14 and 16. मार्क कर लो बेटा पहले, फिर हम आगे चलते हैं. एक बार ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये भी आपके बोर्ड में
और जेई में मिलते हैं क्वेश्चन आपके। 11th क्वेश्चन को जेई में मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए देखा है। तो एग्जाम्पल 11, देन एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 16, दीज आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 11, 14, 16। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा पहले ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100, एग्जाम्पल नंबर 11, 100 और 1000 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। so we have 6 digits available, right? If the repetition of the digit is not allowed, again beta, first thing is how many digit number lying between 100 and 1000 beta? Anyone beta? कितनी digits के number? 3 digits 3 digit, right? 3 digit number. So 1 2 3 6 digits we are having। और हमसे कोई और कंडीशन तो नहीं पूछी? नहीं, ठीक है बेटा। नाउ फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस, फर्स्ट थिंग इज फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव बेटा? So 5. 5 because 0 we cannot fill at this place। if we are filling up 0 here, we are taking 0 digit as an option for this place, then it means this is not a 3 digit number, right? Again, now for this place how many options we have? Second place beta, sir 5 for second place 5 option, and for the last one beta sir 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 25 into 4 is 100, राइट? और इन्होंने इसको सॉल्व किया है किस तरीके से? फॉर्मूले से, जो अभी हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने इसमें क्वेश्चन किया था हमने एक्सरसाइज में, तो वही तरीका बेटा। पहले 3 डिजिट नंबर बनाना है, वी हैव 6। तो अगर मैं 6p3 लिखता हूं तो 6p3 में आपके पास इस तरीके के डिजिट 3 डिजिट नंबर भी आएंगे जिसमें 100 प्लेस पे 0 होगा, क्योंकि ये मशीन है, मशीन के अंदर डाल दिया, मशीन का दिमाग नहीं है अपना, उसने तो ये वाला नंबर भी दे दिया, वो इसको 3 डिजिट नंबर कह रहा है। आप जिस डिजिट 3 डिजिट्स को कंबाइन करके जो भी नंबर बनता है दैट इज नोन एज 3 डिजिट नंबर, उसने ये बना दिया। तो ये जो मशीन है ये इसको भी 3 डिजिट नंबर काउंट कर रही है, दिमाग लगा के आपको एक्चुअल 3 डिजिट नंबर लाने हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से, मैंने अब जो भी दिए बेसिकली दिस इज नोन एज 2 डिजिट नंबर, और मुझे 0 हटाना है इन दो में से भी और इस टोटल में से भी। So now we have total 5 digits and we have to make 2 digit number। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास फिर से आंसर 100 ही आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो दिस मेथड यू कैन यूज और दिस मेथड यू कैन यूज, ठीक है ना? अगर मेरे से आप पूछोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा दिमाग किसमें तेज चलता है, तो मेरा वाला दिमाग इसमें तेज चलता है, ठीक है ना? मतलब अब ये आपको अपनी प्रैक्टिस हिसाब से बनानी है कि यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ओनली और यू कैन यूज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंट। फॉर्मूला की फॉर्म में एमसीक्यू में आ सकता है ना? क्या बेटा, क्या कह रहे? दोबारा बोलोगे? फॉर्मूला से करके देखा है एनसीईआरटी में, ये एमसीक्यू में आ सकता है ना? हाँ, मतलब वो ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है, या ओनली 6p3 करेक्ट है, या ओनली 5p2 करेक्ट है, या वो 5p3 लिख देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है ना? वो और भी कुछ कर सकता है, -5p3 कर देगा, इसके संग कर देगा -6p2, कुछ भी आपको ना कंफ्यूज करेगा अगर आपको ऑप्शन में देगा एमसीक्यू में, ठीक है ना? और बेसिकली आपको सोचना क्या, देखो अगर मान लिया आपका ये वाला तरीका भी सही नहीं है, आपको पता है आंसर ये 100 है, इस तरीके से आप फटाफट से कैलकुलेशन करके देख लो किसका आंसर फटाफट जाता है। कुछ आइडिया आपको दे देगा कि मैं सबसे पहले इसी को चेक करता हूँ। देखो लॉजिकल ढूंढो, 6p3 5p2 लॉजिकल बन रहा है, 6p3 -5p3 ये लॉजिकल बन रहा है किस सेंस में कि आपने यहाँ 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया। कुछों के लिए यही लॉजिक बनेगा तो वो डायरेक्ट इसी को चेक कर रहा होगा, लेकिन जिसके माइंड में ये आ गया कि इस प्लेस पे 0 नहीं होगा उसको हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, अगर 0 होता है तो, ठीक है ना? तो अगर वो क्लिक कर गया तो उसका सीधे सीधे आंसर जाएगा, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है?
जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी आप उसी तरीके से इसको परफॉर्म करोगे। चलो बेटा अब आ जाओ अगला एग्जांपल 14। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एग्जांपल नंबर 14। Find the number of different 8-letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter. So in example number 14, word is DAUGHTER, ठीक है, डॉटर। हाँ, कितने लेटर्स हैं इसमें बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। We have 8 letters. Anyone is repeating? No one is repeating now. So total 8-letter word we can make. Total number of words is equal to 8 factorial हो गया बेटा। This is my answer. Now the next is what they are saying, all vowels occur together. मेरा पहला क्वेश्चन है कि all vowels occur together. तो फर्स्ट इज मैं इसमें से vowels सेलेक्ट करता हूं बेटा। vowels आर ए और कौन सा है भाई? ई, नेक्स्ट इज यू, ठीक है। सो वी हैव दीज थ्री। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई भी वर्ड लिखूं तो ये तीनों एक ही जगह आने चाहिए, लाइक दिस वे, ए ई यू, फिर आपके क्या रह गया? जी एच टी आर, इस तरीके से। तो देखो आप यहां मैंने इस जगह पे ये तीनों वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं। तो दे आर सेइंग कि जब भी आप 8-letter वर्ड बनाओ तो वॉवल्स कम टुगेदर आने चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। तो व्हाट वी हैव डन बेटा, व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट आई एम सब्ट्रैक्टिंग दीज 5 letters फ्रॉम द रेस्ट, यानी टोटल लेटर। तो 8 - 3 = 5। पहले मैंने तीनों को हटा दिया, अब मेरे पास 5 बचे, 5 बचे बेटा। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग ऑल दिस वॉवल इन अ बॉक्स। एक पैकेट में डाल के बंद कर दिया। नाउ दैट पैकेट इज टर्म्ड एज वन सिंगल लेटर। मैं इसको अब सिंगल लेटर ले रहा हूं, ये बॉक्स मेरा एक सिंगल लेटर है, ठीक है। नाउ 5 + 1 दिस बॉक्स, so we have this 6 letters we have। इस बॉक्स का मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि जब भी मैं इसको अरेंज कर रहा हूं इन 5 के साथ, ये लेटर, ये वॉवल्स एक साथ ही आ रहे हैं। ये फिक्स हो गया कि भाई अगर मैं इसको ओपन छोड़ूंगा तो ये कहीं पे भी शफल करके कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन मुझे रखना है इन तीनों को एक साथ। तो तीनों को बांध दिया मैंने और उस बंधे हुए को एक लेटर कंसीडर करके इसके साथ मिक्स कर दिया। अब ये जहां भी आएगा ये वाला बॉक्स, उसका मतलब है कि उसके अंदर तीनों के तीनों वॉवल्स, ठीक है। तो नाउ required numbers are, I have to arrange these 6 letters. 6 letters can be arranged in 6 factorial way, ठीक है। This is the arrangement of this 6. Now how many boxes we can make using these 3 vowels बेटा? जब मैंने बॉक्स में, जब इसको एक सिंगल बॉक्स बनाया तो मैंने इस ऑर्डर में रखा था इनको, ए ई यू, ठीक है, ए ई यू, इस ऑर्डर में रखा था। अगला ऑर्डर मेरा ये भी हो सकता है ए यू ई, उससे अगला ये भी हो सकता है ए ई यू, तो हो चुका। अब आ जाएगा आपका यू ए ई, देन आ जाएगा यू ई ए, फिर आपके पास ई से आ जाओ, ई ए यू, ई यू ए। 1 2 3 4 5 एंड 1 is 6। तो या तो एक एक करके इनको काउंट कर लो एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, बिकॉज वी कैन मेक a box in this order, this order, this order, this order, this order, this order. So we can make 6 boxes using these 3 vowels, ठीक है ना। जब मैं तीनों को बांध रहा हूं या किसी एक बॉक्स में रख रहा हूं तो मैंने इस ऑर्डर में रखा, तो ये जो 6 फैक्टोरियल आया है इसके अंदर जब भी ये वॉवल्स आएंगे इस ऑर्डर में आएंगे, ए ई यू, देखो ये रहा। अब आपके पास नेक्स्ट के अलावा नेक्स्ट वर्ड क्या बन सकता है बेटा?
इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा? दिस इज द फर्स्ट वन आई हैव टेकन। नेक्स्ट हो जाएगा डी बी। अब ये बॉक्स एंड बॉक्स में लिखा है ए यू, देन आ गया एच सी आर, इस तरीके से। ऐसी नेक्स्ट इसको आगे शिफ्ट कर दूं, फिर आगे शिफ्ट कर, फिर आगे, और एक सबसे आगे भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से। लेकिन ये बॉक्स जब भी आ रहा है, इस बॉक्स का मतलब है मेरे बॉक्स के अंदर जो वॉवल्स हैं वो इस ऑर्डर में लिखे ए ई यू। तो अब ऐसे बॉक्स में कितने बना सकता हूँ? वो ये रहे। तो एक तो तरीका ये है कि आपने एक एक करके काउंट कर लिया कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, और वी कैन राइट 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। वी कैन, वी हैव 3 वॉवल्स, तो 3 वॉवल्स को मैं 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकता हूँ। तो इसका एक ये तरीका है। तो 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, दिस इज 720 एंड 3 फैक्टोरियल 6 सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है 4320 मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट वॉवल्स अकर टुगेदर। जब अकर टुगेदर को आ रहा है तो जिनको भी वो साथ चाह रहा है उनको एक बॉक्स में बंद करके कंसीडर दैट एज ए सिंगल लेटर। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वन बेटा, ध्यान रखना। दिस इज द न्यू थिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बिफोर दैट यू हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा। अब ये लॉजिक है, ये आपने पजल्स में पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने पढ़ोगे तो आप कभी कोई पजल सॉल्व कर रहे हो तो तब ऐसी चीजें फेस की होंगी आपने। अब आपके पास एक तरीका आ गया बताइए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा? दे आर सेइंग ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। व्हाट आई नीड टू डू बेटा इन दिस केस? अगर वो खाली सेकंड में, मुझे फर्स्ट पार्ट तब भी सॉल्व करना पड़ता बेटा, ये ध्यान रखना। तो सेकंड पार्ट automatically include the first part. First part उसके लिए निकालना पड़ेगा if they are asking directly second part. All vowels do not occur together. This is what all vowels do not occur together. All vowels do not occur together. Right? So total यहाँ पे होता है total, ये रहा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस वॉवल अकर टुगेदर। टोटल आपके पास है 8 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स अकर टुगेदर का आया था 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 8 7 इनटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 इनटू 2 इनटू 1। 6 factorial we have taken common, 56 minus 3 to the 6, this is 720 into 50। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 72 5 is 360, so we have 36000, this is the answer, 36,000। बोलो बेटा क्लियर है ये? क्लियर? ये ना बोला हो कि हमने सारे लेटर्स यूज करने हैं, तो क्या हम 2 से लेके जितना मैक्सिमम लेटर्स हो सकते हैं उन सबका निकालेंगे? बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर से तो टोटल के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल के लिए तो हाँ, अगर ये 8 लेटर वर्ड है, अब तो पहले हमने 8 लेटर वर्ड को कितने, इनसे वैसे बेसिकली हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जब ये 8 फैक्टोरियल है उसमें ऑटोमेटिकली वो सारे वर्ड भी आ रहे हैं जिसमें सारे वॉवल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी आ रहे हैं जिसमें वॉवल्स एक साथ नहीं है। तो अगर मैं अब आपको देखो ये जो है, अगर आप 8 फैक्टोरियल को काउंट करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप। क्वेश्चन सर आई एम आस्किंग कि अगर हमें बोला ही ना हो कि हमें सारे लेटर्स यूज करने हैं, तो हम हर केस निकालेंगे ना, पहले 2 लेटर्स का फिर 3 का मैक्सिमम लेटर्स तक, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हो। फिर जब आपको बोला ही नहीं है तो आपसे तो इसका मतलब वो ये पूछ रहे ना कि 8 लेटर वर्ड्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो तो ये रहा मेरा 8 फैक्टोरियल। ये तो एक रेस्ट्रिक्शन हो गई, वो आपसे स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है। दिस इज द कंप्लीट थिंग विच वी कैन डू विद दिस डॉटर वर्ड, राइट। 8 फैक्टोरियल में सब चीजें आ गई इसके अंदर। अब आप इसमें से कुछ कंडीशन दे रहे हो। अगर वो बोलते हैं तीनों वॉवल्स, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, या वो बोलता है स्पेसिफिकली एनी 2 वॉवल्स, तो ये क्या हो गया? एनी 2 वॉवल्स का मतलब कौन सा हो गया बेटा? अब आपके पास 3 है यहाँ पे, ए यू ई। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से पहले 2 वॉवल्स कौन से लोगे?
तो अभी आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे, नाउ दिस क्वेश्चन बिकम ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इन तीन में से तो पहले वो दो वॉवल्स चूज करने पड़ेंगे कि वो दो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो अभी आप जैसे ये जो अभी क्वेश्चन बोला, अभी तक ये क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर तीन वॉवल्स हैं और वो कह रहा है कि कोई दो वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, अब मुझे दो की पेयरिंग तो करनी है भाई। ए बी सी तीन बंदे हैं और मुझे एक टाइम पे दो को चूज करना है, तो दो ऑप्शन हो गए ना बेटा, या तो मैं ए बी को यूज करूंगा या ए सी को यूज करूंगा या बी सी को। तीन तरीके आ रहे हैं मेरे पास, यानी तीन तरीके से मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है बेटा। तो अभी ये क्वेश्चन आपका विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आएगा, तो जब आपको ये चीज क्लियर होगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हो कि कोई दो करने, तो बेटा वो या तो इस कंडीशन को सर मुझे ये क्वेश्चन तो समझ में आ मेंशन गया करेगा सर, कि मुझे मेरा ये चाहिए, क्वेश्चन उसको निकाल। आपका ना सर क्वेश्चन मुझे मैंने क्लियर नहीं हो पूछा रहा कि यस सर सर है। हाँ बोलो। मैं पूछ रही हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन में यही ना बोलें कि हमें ऑल द लेटर्स गिवन इन द वर्ड यूज करने हैं, अगर डॉटर के 8 यूज ही ना करने हो, तो हम 2 से लेके मैक्सिमम यानी 8 तक जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब निकालेंगे ना। अच्छा आप ये कह रहे हो कि वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है कि 8 के 8 वर्ड यूज करने, ठीक है ना। आप कितने वर्ड के लेटर बना सकते हो ये कह रहे हो ना आप। इसमें 2 लेटर वर्ड भी होते हैं, ठीक है, 3 लेटर वर्ड भी होते हैं। तो आपको उस केस में देखो इस तरीके से आ जाएगा आपको सारे ऑप्शन। शायद मैं अब समझ पा रहा हूं आपके क्वेश्चन को। तो अब आपके हो गए 2 लेटर वर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि वर्ड तो 2 लेटर वर्ड प्लस 3 लेटर वर्ड प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। 2 लेटर वर्ड के लिए हो गया 8 इंटू 7, फिर 3 के लिए करते हो तो 8 इंटू 7 इंटू 6, फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सो ऑन। कनक कैसे ही कुछ क्वेश्चन है आपका, बोलो। यस सर यही था सर मेरा क्वेश्चन। इसमें डाउट ये है कि जब हम ईच का निकाल लेंगे 2 का 3 का टिल 8, तो उनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें सारे बताने हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने बोला है अगर जब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तो वो कुछ ऐसा भी देंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि मेरे माइंड में कि 2 लेटर वर्ड भी हो सकते हैं, 3 लेटर वर्ड भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो उसको तो ऐड करके ही टोटल बता पाओगे। मल्टीप्लाई देखो और भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, जब मेरी किसी भी सोच में और ऑप्शन आता है, इधर और ऑप्शन आता है, तो वी हैव टू ऐड, राइट। और जब मेरी किसी भी थिंकिंग प्रोसेस में एंड कॉन्सेप्ट आ रहा है, इट मींस दिस इज मल्टीप्लिकेशन। रिमेंबर दीज टू थिंग्स बेटा, एंड दिस विल हेल्प यू इन प्रोबेबिलिटी आल्सो, क्योंकि ये दोनों चीजें उसमें बहुत आएंगी। तब बच्चा कंफ्यूज होता है कि शुड आई डू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जिस भी ठीक है मेरी थॉट प्रोसेस में, जिसमें जब मैं क्वेश्चन को पिक कर रहा हूं और उस थॉट प्रोसेस में मेरा और आ रहा है, इधर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन हियर। अगर ये सिचुएशन है इधर दिस में भी 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड और 4 5 6, तो और केसेस एडेड, एंड केसेस मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिए कोई नहीं, आज आप क्या करोगे बेटा, आज की डेट में आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ट्राई करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो परमुटेशन की लगभग 20 से 30% की जो बैटल है आप जीत जाओगे, अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से समझ लिया। परमुटेशन यानी लॉजिक्स का एक अच्छा बंच ऑफ लॉजिक्स के प्रॉब्लम है ये। तो ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 एंड देन एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए बेटा, एग्जाम्पल 16, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ठीक है। और 9 मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो 9 आप ट्राई करोगे। एंड आपको मैं रिलेटेड प्रॉब्लम फ्रॉम एमसीक्यू भी वो इससे ही बोल रहा हूँ, मिसलेनियस से भी आप ट्राई करना। इफ 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4
5. Question number 4 and 5 of miscellaneous. Miscellaneous question number 4 and 5. So I have given you 6 question total homework. ठीक है बेटा? You all have to try these 6 questions. This is based on what we have done till date. तो ये questions आपको try करने और rest next topic we'll do in the next class. ठीक है बेटा? Any other doubt? हाँ जी बेटा. सर कोई और डाउट हो? 1 second, let me take the attendance बेटा. 1 second बेटा बस. Okay, now you can leave.